dear students, let us continue our discussion of your TTC first semester syllabus of Unit 1. Okay. So today we will discuss two types of functions. One is modulus function and another one is greatest integer function. So let us discuss those functions one by one. Okay. Because these two functions plays very important role in your degree syllabus, in your HS first year also. Sorry, TTC first year, first semester. So let us discuss mod function and modulus function or absolute value function. Before that I want to suggest you something that आप प्लीज़ जो आप लोगों ने एचएस में पढ़ा था कि फंक्शन का डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ए गिवन फंक्शन, राइट. These things are very important. You should know these things. Otherwise you will not able to apply to solve the problems here. Okay. So please go through HS first year and second year function chapter thoroughly and try to understand how to find the domain, range and codomain of a given function. Okay. So let us discuss this mod function, a modulus function, and absolute value function. What is this function? First of all, you should know what is the domain of this function, what is the range of the function. Okay. This is very important to you. Now what is the domain of the function? Basically mod function क्या होता है? mod function हम real numbers पे apply करते हैं, right? हालांकि यही है कैलकुलस में हम जो है वो रियल एनालिसिस में है, मतलब रियल नंबर का ही हमारा जो सबसे बड़ा डोमेन है वो रियल नंबर है. ओके. सो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा, बिकॉज वी कैन फाइंड द मॉड ऑफ एनी रियल नंबर्स, इजंट इट? तो डोमेन शुड बी रियल नंबर. डोमेन किसको कहते हैं? जिससे हम मतलब कुछ लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, राइट. उसके बाद इसको एफ ऑफ उसमें इनपुट देते हैं और आउटपुट जो आता है वो कहाँ से आता है? वो रेंज से आता है, राइट. सो यहाँ पे डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, isn't it? So here domain is real number. So this function is basically f is a function defined from set of real numbers to where? Set of real numbers to where? Because your codomain may be set of real numbers, but range is what? Range should be 0 to infinity. Close interval 0 to open infinity by fx equals to mod x for all x belongs to R. Right? इस तरह आप डोमेन रेंज निकाल सकते हो. पहले आपको क्या सोचना होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मींस क्या करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू हमें आप जो भी इनपुट दे दो, यहाँ पे जो भी इनपुट दे दो आपको हमेशा क्या देगा? एब्सोल्यूट वैल्यू देगा. एब्सोल्यूट वैल्यू मींस पॉजिटिव वैल्यू देगा, right? Whatever value you can put here, if you can put 1 then you will get 1, if you put here -1 then also you will get 1, isn't it? So मतलब आप कोई भी रियल नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हो. You can find the modulus of any real number, isn't it? That's why your domain is set of real numbers, but your range should be 0 to infinity. क्यों 0 to infinity? क्योंकि f of जो भी आप निकालोगे वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा, isn't it? हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, इसलिए आपको सारे पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करना है और f of 0 जो आएगा वो 0 आएगा, इसलिए 0 को भी इंक्लूड करना है. मतलब रेंज शुड बी नॉन नेगेटिव, ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स. इट मे बी इंटीजर, मे बी फ्रैक्शन, मे बी रेशनल नंबर, मे बी इरेशनल नंबर, बट एवरी नंबर शुड बी पॉजिटिव. दैट मींस इफ यू वांट टू फाइंड f of -√2 then it will come out to be +√2. okay. Now how to define this? You see, it is what? It is x. If x greater than or equals to 0, then it will be -x if x less than 0, right? Isn't it? This is the definition of the function. Now how to draw the graph of the function? Is it clear for you? The definition, you see, if you want to find f of suppose f of 7. Now 7 is what? 7 satisfies which property? 7 is what? Greater than or equals to 0, isn't it? So if x means this x, if this x is greater than or equals to 0, then your image is only x. That means if you put here x and this x is greater than or equals to 0, then your image should be this x. That means identity function. So it will be what? This 7 satisfies this property, so f of 7 will be 7, mod 7, or this is nothing but 7, isn't it? Now what will be f of -3?
f of minus 3, you see, f of minus 3 means what? This definition, this minus 3 follows this definition, because f of x will be minus x if x less than 0, isn't it? So here my minus 3 is less than 0, so it will be minus x. That means modulus of minus 3 will be what? Minus of minus 3, and it will be plus 3, isn't it? Because it is minus of x, minus x, and this x itself is a negative quantity, because this x is less than 0. So it will be minus of minus negative quantity, it will be positive quantity, definitely, right? So this is the way how we can apply the mod function or absolute value function to solve the particular problems, okay? So now let us see how to draw the graph of this mod function. You can draw the graph. You know how to draw the graph, isn't it? You know. So this is your x, this is your x dash, this is your O, origin, this is y, and this is y dash. Okay? This x always represents what? This x always represents domain of the given function, and this y axis always represents range of the given function, or you can say codomain of the given function. Okay? This represents codomain of the given function. Now see, if you take any positive quantity, you see, first of all you should know the graph of this identity function fx equals to x, right? Fx equals to x. Here also it is fx equals to x if x is greater than or equals to 0. So f of 0 is 0, there is no doubt, right? So if you take any quantity here, that means it is what? This definition is what? Fx equals to this. So fx equals to x is nothing but this straight line passing through the origin, isn't it? With slope 45 degree. Or you can find one box also. If you put here 1, you will get 1. If you put 2, you will get 2. If you put 3, you will get 3. If you put 4, you will get 4. Isn't it? This way. So this line should be this. Isn't it? Because this part is what? This part is a positive side of the domain, and this is the negative side of the domain, isn't it? So if you take any positive number, you will get the image of the positive number is the number itself, isn't it? If you take 2, then here also you will get 2, isn't it? Because 2 अगर 2 का image क्या होगा? 2 होगा. जैसे देखो 2 का image 2 होगा, because if you want to find f of 2, you will get 2, right? If you find f of 3, you will get 3. F of 4, you will get 4. F of 1.5, you will get 1.5. So the graph will be like this, right? For positive numbers. Now for negative numbers, you see, it will be what? F of x equals to minus x. That means if you take 1, you will get minus 1. If you get 2, you will get minus 2. If you get 3, you get minus 3. If you take 4, you will get minus 4, like this. So you see, if you take if you take minus 1, you will get 1. If you take minus 2, you will get 2. If you take minus 3, you will get 3. If you take minus 4, you will get 4. So your all the independent variables are negative. So negative part will be in this side, right? Negative part क्या होता है? यहाँ पे होता है. So negative part यहाँ पे होता है, मतलब उसका जो range है वो सब positive है. तो यहाँ पे नहीं आएगा. यहाँ पे नहीं आएगा. कोडोमेन में क्या होता है? y axis में यहाँ पे positive होता है, यहाँ पे negative होता है. बट आप अगर आप डोमेन का पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो तब भी आपका जो कोडोमेन में वैल्यूज आ रहा है वो सब क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. अगर आप डोमेन में नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो तब भी आपका कोडोमेन में वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है. तो दिस इज आल्सो नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज़ fx इक्वल्स टू माइनस x. दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सो दिस इज लाइक दैट. ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन. आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है एचएस में, फिर भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको मैं कुछ मतलब एक्सप्लेन करूँगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको. तो ये समझने के लिए आपको ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये बहुत ही आसान सा एक मतलब एग्जाम्पल लिया हुआ है. उसके बाद इसका डोमेन रेंज डिस्कस किया और ग्राफ कैसे निकाला जाता है वो भी डिस्कस किया. सो आप प्लीज़ जो आपका एचएस फर्स्ट ईयर में जो भी आपने पढ़ा है मतलब फंक्शन का डोमेन रेंज उसका ग्राफ, प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ो उसको. कैसे डोमेन निकलता है, कैसे रेंज निकलता है, कैसे उसका हम फंक्शन का ग्राफ निकाल सकते हैं.
तो अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया तो ये सब आपको आसान लगेगा, नहीं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होते जाएगा, डे बाई डे बहुत ही डिफिकल्ट होता जाएगा. So before that, pause the video, note it down. Hello students, this is another function that I have chosen to discuss here. This is called greatest integer function. आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, obviously पढ़ा है HS में, HS सेकेंड ईयर में आई थिंक और फर्स्ट ईयर में. सो इसका भी डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. क्योंकि आपका जो मतलब ग्राफ बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पकड़ में आए और फिर आप जाके उसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम शॉर्ट में GIF भी कह सकते हैं, और इस फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है और फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है. तो नाम आपको याद होना चाहिए. ठीक है, इसका 3 नाम है, तीनों नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुक्स लोगे तो किसी भी बुक्स पे GIF लेके बोल देगा, किसी भी बुक्स पे स्टेप फंक्शन होगा, किसी भी बुक पे फ्लोर फंक्शन होता है, लिखा होता है. तो अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पूरा तीनों नाम लिख दिया यहाँ पे, कंफ्यूजन ना होने के लिए. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको मतलब उसका बेसिक नेचर क्या है, मतलब वो क्या करता है, बेसिकली फंक्शन क्या करता है, मतलब कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इमेज देता है, isn't it? वो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन. तो इस फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो पहले तो आपको डोमेन होना चाहिए, डोमेन आपको आना चाहिए कि डोमेन क्या होगा. देखो, वी कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी रियल नंबर. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, दैट आपको किसी भी रियल नंबर दे दो, किसी भी रियल नंबर दिया जाए, you can find the greatest integer of the given real number. This is very important. So यहाँ पे हम कह सकते हैं कि greatest integer जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या हो सकता है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि we can find the greatest integer of 0, we can find the greatest integer of any positive real number, we can find the greatest integer of any negative real number, right? That means we can find the greatest integer of any real number, right? So the domain of the function must be set of real numbers. So the function should be like this. F is a function defined from set of real number. अब आपको आना चाहिए कि इसका रेंज क्या होगा. देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो बहुत एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है. वो क्या करता है, आप कुछ भी वैल्यू ले लो, अगर आप इंटीजर लोगे तो उसका इमेज इंटीजर ही आएगा, सेम आएगा, राइट? मतलब मैंने क्या कहा, अगर आपने ऐसा लिखा f(x) इक्वल्स टू बॉक्स x, हम इसको बॉक्स x कह के डिनोट करते हैं, वो बॉक्सेस क्या होता है, x ही हो जाता है अगर ये x इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 0 -1 -2 कुछ भी हो, यहाँ पे सिर्फ यही आ जाता है. मतलब यहाँ पे भी ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन जैसा बिहेव करते हैं, अगर यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो खुद ही मतलब इंटीजर हो जाए. जैसे कि मॉड फंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि वो फंक्शन भी आइडेंटिटी फंक्शन जैसा बिहेव करते हैं. कब बिहेव करते हैं, जब हम कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर ले ले. नेगेटिव लेने से नहीं होता है, बट नॉन नेगेटिव लेने से इट ऑब्वियसली बिहेव्स एज एन आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, अगर आप कुछ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लो उसका इमेज सेम होता है. मतलब आप मिरर जो होता है हमारे घर पे, मिरर को आप कह सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि अगर आप मिरर के सामने जाओगे तो सामने आपका जो इमेज दिखा जाएगा वो आपका ही दिखा जाएगा, इसलिए आपका माँ या बहन या भाई का इमेज नहीं आएगा. मतलब जो इस मिरर का सामने जाएगा वो सामने वाला जो इमेज आएगा वो खुद का ही आता है. तो मिरर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. मतलब आइडेंटिटी फंक्शन को क्या होता है, अगर आप जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दो उसका जो इमेज आएगा वो दी वेरिएबल इटसेल्फ आ जाएगा. तो ये यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये भी आइडेंटिटी फंक्शन जैसा ही बिहेव करता है. कब बिहेव करता है, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इटसेल्फ कोई इंटीजर हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो जाए, राइट? बट अगर यहाँ पे आप कुछ भी फ्रैक्शन ले लो, आप रेशनल नंबर ले लो, आप इरेशनल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो इमेज आएगा वो हमेशा क्या आता है, हमेशा हमेशा इंटीजर आता है. मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप इनपुट में कुछ भी इंटीजर दे दो तो भी इसका इमेज इंटीजर आता है.
अगर आप कुछ फ्रैक्शन दे दो तो भी उसका इमेज क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर बाय, ये हम डिफाइन कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, राइट। सो ये जो फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है, फंक्शन का जो मतलब ये जो एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो ध्यान से देखते हैं हम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो हम निकालते कैसे हैं। पहले तो मैं रियल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने के लिए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, और यहाँ पे -इन्फिनिटी है, राइट। तो मान लो किसी ने आपको कहा है तो भाई इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, f(2) क्या होगा। तो f(2) का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, f(2) का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी इंटीजर हो तो इसका जो इमेज होगा वो भी इंटीजर होगा। तो यहाँ पे f(0) क्या होगा, f(0) बॉक्स 0 क्या होगा, 0 ही होगा। f ऑफ मतलब -4 क्या होगा, बॉक्स -4, तो यहाँ पे क्या होगा, -4 होगा। अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो तो इसका पॉजिटिव इंटीजर आएगा इमेज, 0 ले लो 0 आएगा, नेगेटिव ले लो नेगेटिव आएगा, कुछ भी ले लो, यहाँ पे कुछ भी इंटीजर ले लो वो सेम आएगा, राइट। अगर आप कुछ भी मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन ले लो 1.12, राइट, बॉक्स ऑफ 1.12, तो इसका क्या है 1.12 कहाँ पे है, अगर 1 यहाँ पे है तो 1.12 शायद यहाँ पे होगा, 1.12 यहाँ पे होगा, isn't it? 1.12 is a fractional number which is greater than 1 but it should be less than 2, isn't it? So it must lie here. तो ध्यान से देखना 1.12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे आपको पता होना चाहिए, कैसे आप निकालोगे, हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.12, you just locate the point, that means यहाँ पे हमें दिया गया 1.12, मैंने क्या किया यहाँ पे इस पॉइंट को लोकेट किया है और इस पॉइंट के इस तरफ आ जाओ, राइट, इस पॉइंट के इस तरफ आ जाओ। इस तरफ आने से कौन सी इंटीजर सबसे पहले आता है वही उसका इमेज होगा। मतलब ये जो 1.12 है तो इसके छोटा छोटा बहुत ही सिंपल वर्ड है, इसका स्मॉल। हाउ टू फाइंड, you just first of all you have to locate the given points at the number line, then you have to find all the numbers which are smaller than the given number. That means it is a given number 1.12, you have to find all the integers, better not numbers, all the integers which are smaller than the given number. So here infinitely many numbers which are smaller than the given numbers, isn't it? Because you can start from 1, then 0, -1, -2, -3, -4 up to minus infinity. That means there are infinitely many integers which are smaller than the given numbers, right? Then your job is to, out of those infinitely many numbers, you have to choose the greatest integer. This is called, this is why this number is known as, this function is known as greatest integer function. क्या कहा मैंने, जो भी आपको पॉइंट दिया गया है इसको आपको लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इस नंबर से जो नंबर आपने लोकेट किया है इस नंबर से छोटा कितना इंटीजर है वो आपको दिखना होगा। अगर मतलब छोटा कितना नंबर होगा वो ऑब्वियसली इनफाइनाइटली नंबर्स होगा, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर इटसेल्फ इज एन इनफाइनाइट सेट, isn't it? तो आपको जो नंबर दिया गया है इसको आपको लोकेट करना है। उसके बाद इस नंबर से छोटा कितना नंबर है, इनफाइनाइटली मेनी नंबर से, जितना भी नंबर से इस नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन है, you have to take the greatest number out of those infinitely many numbers and that should be the image of the given numbers, given number, right? That means यहाँ पे given number क्या होगा 1.12, इससे छोटा कितना इंटीजर है, infinitely many इंटीजर, और out of those infinitely many इंटीजर सबसे बड़ा कौन है, बड़ा इंटीजर 1 है, तो इसका इमेज क्या होगा 1 होगा, isn't it? Similarly, if you want to find that f of -2.5, तो -2.5 इसका इमेज क्या होगा, -2.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2.5 होगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा जो भी नंबर आपको दिया गया है वो आपको नंबर लाइन में लोकेट करना है।
उसके बाद क्या करना है, इस नंबर से छोटा, छोटा मतलब यू हैव टू गो लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, राइट, you have to go the left side of the number line and you have to choose the greatest integer out of those integers which lies the left side of the located number or given number. Okay, so this is our given number. I have located this on the number line. Then I have checked that there are infinitely many integers which are smaller than the given number, and out of those infinitely many integers, minus 3 is the greatest out of those, right? So the image should be minus 3. So this is how you can find the image of any numbers, right? This is how you can find the greatest integer of any numbers. Okay, so this is what basically the greatest integer function. So let me draw the graph of the function. So graph is very important. You should know how to draw the graph of the function. You see, this is x, this is origin O, this is x dash, and this is y, and this is y dash. Okay, suppose यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो -1, -2, -3, -4, यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -2, right? -3. अब देखो, ध्यान से देखो, अगर आपने आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 चूज किया है तो 0 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा. 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा, राइट. तो 0 का इमेज 0 ही होगा, ये इसका इमेज है, राइट. अब देखो यहाँ पे आप 0 से 1 तक, 1 मत लो, 0 को इंक्लूड करो अप टू 1 तक. अगर यहाँ पे से आपने किसी भी नंबर को चूज किया, क्या कहा मैंने, 0 को इंक्लूड करो, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया और यहाँ पे पेरेंथेसिस पार्ट दे दिया, जो कि आपको समझ में आया कि 1 एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे 1 इज नॉट इंक्लूडेड हियर. आप 0 ले लो, 0 को इंक्लूड करो, 1 को एक्सक्लूड करो और बीच में से जितना भी नंबर है सबको ले लो, तो सभी का इमेज क्या होगा. अगर आपने यहाँ पे 0 से 1 तक, यहाँ पे ये जो नंबर है फ्रैक्शनल नंबर 0.1, 0.2, 0.3, 0.8, 0.7, infinitely many numbers are there, and if you take any number, then image of those numbers must be equal to 0, isn't it? तो यहाँ पे आप कितना भी नंबर ले लो, सबका इमेज क्या होगा, 0 ही होगा. तो ये होगा इसका, इसका क्या होगा, इमेज होगा, isn't it? इसका इमेज होगा. अब आओ 1. अब देखो इस 1 को इंक्लूड करो और 2 को एक्सक्लूड करो, तो 1 से लेकर 1 को इंक्लूड करो, 2 को एक्सक्लूड करो, और यहाँ पे जितना भी नंबर है 1.12, इसके इमेज क्या आया था, 1 आया था. 1.13 ले लिया तो क्या आएगा, 1 आएगा. 1.14, 1.15, 1.99, 1.78, कितना भी नंबर ले लो इन बिटवीन 1 and 2, हर एक का इमेज क्या आएगा, 1 आएगा. तो 1 का इमेज क्या आया, 1 आया, राइट. और 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 को एक्सक्लूड करके 1 से लेके 2 तक, इसका इमेज क्या आएगा, 1 ही आएगा. तो ये होगा ना इसका इमेज, ये होगा रेंज. सिमिलरली 2 का रेंज, 2 का इमेज क्या आएगा, 2 आएगा. ये 2 है ना, 2 का इमेज 2 आएगा और सबका इमेज 2 आएगा एक्सेप्ट 3. 3 का इमेज क्या आएगा, 3 आएगा एक्सेप्ट 4. ये होगा इमेज. अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 एक्सक्लूडेड है, राइट. तो ऐसा मार्क दे दो, होल साइन दे दो. यहाँ पे ये इंक्लूडेड है क्योंकि 1 का इमेज 1 है. अब जो भी नंबर यहाँ पे यहाँ से लो 1.15, तो इसका भी इमेज 1 होगा. 1.9 ले लो, इसका भी इमेज 1 होगा. बट 2 का इमेज 1 नहीं होगा, 2 का इमेज 2 होगा. तो यहाँ पे एक होल साइन दे दो. इस होल का मीनिंग है इस 2 का इमेज 1 नहीं है, 2 का इमेज 2 है. तो यहाँ पे ऐसा मार्क कर दो. देन यहाँ पे 3 का इमेज क्या होगा, 3 2 आ गया, तो 2 नहीं हो सकता, किसी एक का इमेज 2 नहीं हो सकता, राइट. किसी एक होगा. तो 3 का इमेज 3 होगा, 2 नहीं होगा, तो इसको होल कर दो. और 3 का इमेज 3 होगा, इसको ऐसा कर दो. 4 का इमेज 3 नहीं होगा, 4 होगा, ऐसा होल कर दो. यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो. 0 का इमेज 0 है, राइट. -1 का इमेज क्या होगा, -1 होगा, राइट. तो यहाँ में से आप जितना भी नंबर ले लो, सभी का इमेज क्या होगा, -1 होगा. बट ये होल होगा.
क्योंकि 0 का इमेज 0 है, 0 का इमेज -1 नहीं है, तो -2 का इमेज क्या होगा, -2 होगा। और यहाँ में से आप जितना भी नंबर ले लो सभी का इमेज क्या होगा, -2 होगा। तो ये आप ऐसा ले लो और यहाँ पे होल्ड कर, क्योंकि -1 की इमेज -1, -2 नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे -3 ले लो, -3 की इमेज क्या होगा, -3 होगा। तो यहाँ पे ये होगा, ये राइट। अगर आप इसमें से कोई कोई भी नंबर ले लो, इसका इमेज -3 ही हो, बट -2 का इमेज क्या है, -2 है, -3 नहीं है, इसको होल्ड कर दो, राइट। आप ध्यान से देखो, इसका जो ग्राफ है वो क्या है, स्टेप वाइज है, दिस स्टेप, दिस स्टेप, स्टेप 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 स्टेप, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नोन एज स्टेप फंक्शन आल्सो, okay. So this is how we can draw the graph of the function by knowing the structure of the function, nature of the function, domain and range of the function properly. So आपको function पहले ध्यान से समझना होगा, function का डोमेन कैसे निकलता है वो आपको समझना होगा, function का रेंज कैसे निकलता है वो आपको समझ में आना चाहिए, function का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। सो मैंने ये दो एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस दोनों फंक्शन के लिए बहुत कन्फ्यूजन भी है, इसलिए मैंने ये दो फंक्शन मतलब ट्राई किया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर और थ्रू ऐप इटसेल्फ, ओके। यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, how to find the domain of the given function, how to draw the graph of the given function. So these three things are very important. So please work on that. Otherwise, you will face lots of problems in your near future classes. So before that, pause the video, note it down.